स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है करम योगी दिवाकर बोथरा और मैं आप सबका स्वागत करता हूं। एक बहुत बड़ा एस्पेक्ट होता है कि अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो क्वाइट बट ऑब्वियस कहीं ना कहीं थोड़ा सा एक कंफ्यूजन रहा होगा कि कोचिंग इंस्टीट्यूट कौन सी करूं। पहले सिर्फ ऑफलाइन कोचिंग इंस्टीट्यूशंस अवेलेबल थी, तो बच्चों को दिल्ली आना पड़ता था, क्लासेस करनी पड़ती थी, एक डिफरेंट सेट ऑफ एनवायरनमेंट में रहना पड़ता था, कई बार चैलेंज होता था उन सब के अंदर रहना। लिंग्विस्टिक चैलेंजेस, कल्चरल चैलेंजेस, फूड चैलेंजेस, हेल्थ चैलेंजेस। आज ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों है, तो कुछ चीजें अगर आसान हुई है तो कुछ चीजें डिफिकल्ट भी हुई है। डिफिकल्ट क्या हुआ? कंफ्यूजन का दौर आ गया। कंफ्यूजन्स आर मच मोर स्ट्रॉन्ग टुडे because earlier the confusion was only between choosing a particular coaching, which was obviously offline. Today, first confusion, online or offline. Second confusion, which one in online or which one in offline. Is there any institution जो online और offline दोनों के अंडरस्टैंडिंग पे चलती है, दोनों के तरीके से चलती है? Let's see next 15 minutes कि आपको चूज कैसे करनी है कोचिंग. This video is not just to make you just to tell you कि join study IQ. That is your personal choice, completely democratic. I'm not going to put up any ideological fronts here, but एक student centric perspective which is ultimately the motto of our organization. If you look, क्वेश्चन पहले कैसे करना चाहिए ज्वाइन कोचिंग, पहले ये देखो कि आप ज्वाइन क्यों करना चाहते हो कोचिंग. Why you are looking for a coaching? Quite but obviously ultimate अगर essence बोलूं तो it's like to crack the civil services examination. अब in order to crack this examination, what are the minimum requirements which you require? What is required to crack civil services? Following are some of the aspects which you require in order to crack this exam, whether you are within the coaching or outside the coaching realms. First thing, all are in decreasing importance. सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज विच यू शुड लार्जली हैव इज मेंटरशिप. But the people are there to handhold you. Second, I'll explain each and every point. Democratic classes. There are some classes where you're not even able to express your opinions. The teachers may not have time. That the class's strength may be very big or large, or this is not the way they teach. So it's like a sermon where a teacher comes, gives you a sermon, you note down the sermon, and then you go back home and develop a doubt, and those doubts are never cleared. Second, building analytical abilities. In order to crack this exam, you would have to have this. अब coaching institutions many times help you to build those analytical abilities, as when you read from a book, you get the content right. But in order to use this content at multiple places, और in order to get that novel content from different places जो आपके टीचर आपके क्लासेस में देते हैं, वो डेवलप करनी है आपको. कोचिंग का एक इंपॉर्टेंट रोल इस पार्ट में आता है. नेक्स्ट, आंसर राइटिंग. आपको आंसर राइटिंग करनी पड़ेगी इफ यू हैव एनी सीरियस गोल ऑफ क्रैकिंग दिस एग्जामिनेशंस. इन फैक्ट द फर्स्ट डे व्हेन यू स्टार्ट सिविल सर्विसेज प्रिपरेशन, you should start writing from that day, because it's a misconception that answer writing should be done only after the completion of syllabus. Because how do you know the syllabus which you have completed? Do you even are in a position to write that? और बाई चांस कोर्स खत्म होने के बाद में आंसर राइटिंग करते हो और पता चला कि याद ही नहीं है चीजें, समझ ही नहीं है ये चीजें, फिर क्या करोगे? Next, personal support. This journey is not just challenging with respect to the content, with respect to the syllabus, with respect to the competitive environment it carries. It also puts you in a personal pressure matrix. जहां पे many times the things would not fall as we want them. In that context, that mentorship support should be there in your personal spheres as well, when you feel demotivated, when you largely feel like giving it up. And last part मैंने इधर लिखा है, the content. Content is the least important part as far as cracking this examination is concerned. अब आपको लगेगा अरे सर का कंटेंट अच्छा नहीं होगा इसलिए सर ने कंटेंट को लास्ट में डाल दिया. नहीं, मैं सबसे पहले डिस्कस ही करूंगा कंटेंट. कैसे कोचिंग इंस्टीट्यूशन इन सारे फैक्टर्स के ऊपर चूज करनी है. यू नीड टू कीप ऑल दीज फैक्टर्स इन माइंड व्हेन यू आर चूजिंग अ कोचिंग इंस्टीट्यूशन. इफ मेजॉरिटी ऑफ द फैक्टर्स, इट्स एन आइडियल टाइप ऑफ मैक्स वेबर. सारे के सारे शायद हो सकते नहीं फुलफिल हो,
बट अगर 90% भी फुलफिल हो रहे हैं, यू क्लोज योर आइज एंड ज्वाइन दैट ऑर्गेनाइजेशंस, बिकॉज अल्टीमेटली योर मोड ऑफ क्रैकिंग द सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन वुड बिकम मच, द जर्नी वुड एटलीस्ट बिकम मच मोर easier, because the examination would be cracked only if you work hard for yourself, because nobody is going to be dedicated to your success as much as you are. अब सबसे पहले देखते हैं कंटेंट. स्टडी आईक्यू के अंदर द सोशियोलॉजी प्रोग्राम, we have all those features which I mentioned it here, and I'll prove it right now factually here. Our content, मैंने लास्ट में लिखा था कंटेंट, आपको लगा होगा सर का कंटेंट खराब होगा इसलिए सर ने अवॉइड कर दिया. नहीं, ये सब काम नहीं है. कंटेंट 3 चीजें मिलेगी सोशियोलॉजी के प्रोग्राम में. आपको हैंड रिटन नोट्स मिलेंगे, जो क्लास में लेक्चर्स बोला जाएगा वो सारे के सारे नोट्स हैंड रिटन नोट्स में मिलेंगे आपको. एप्लीकेशन, एग्जाम्पल्स, डायग्राम्स. कैसे होंगे हैंड रिटन नोट्स? ये एग्जाम्पल है हैंड रिटन नोट्स का. अब हो सकता है ये स्क्रीन के अंदर थोड़ी सी लाइट है तो इसलिए शायद ये दिखाई नहीं दे रहा है. ये हमारे हैंड रिटन नोट्स हैं. ये जो इतना डिटेल है ना, ये ऑनलाइन में मैं समरी देता हूं, वो पर्सन लिखता है ताकि ये पूरा का पूरा जो ये डिटेल लिखी हुई है समरी आपको याद रहे. ये टॉपिक था एप्लीकेशन ऑफ मार्क्स का सिलेबस कवर कराने के बाद भी हम उनके सारे एस्पेक्ट कवर करते हैं कि क्या एप्लीकेशन रहा. एवरी अदर स्कॉलर जो उस मार्क्स के कंटेंट से कनेक्ट हो जा रहा है उनको भी लिखा हुआ है. सिर्फ मार्क्स को मार्क्स नहीं, ये सारा कंटेंट नोवल होता है जो आप डालते हो आंसर के अंदर. और इसके बराबर का अगर कोई नोट्स कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अगर आपको देती है, आई एम रेडी टू पे योर फीस. आई एम सेइंग यू दिस ऑन अ प्लेटफॉर्म विच इज ओपन टू ऑल. बट नोट्स की क्वालिटी ऐसी होनी चाहिए, इतना इंटीग्रेशन, इतनी क्लियरिटी. तो जो आपको लग रहा था हमारे नोट्स सबसे पहले, बट रिमेंबर दिस इज द लीस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट. व्हाई? बिकॉज कंटेंट आज इतना फ्रीली अवेलेबल है कि दिस इज नॉट अ चैलेंज. साथ ही साथ में हम क्रक्स देते हैं. जितनी स्टैंडर्ड बुक्स आप सोशियोलॉजी की सोच सकते हो, पढ़ना दूर की बात, सबका कंटेंट इस क्रक्स में है. चाहे वो निस्बत हो, हार्लम्बस हो, हार्लम्बस एंड हॉलबॉर्न हो, हार्लम्बस और ऑरेंज कलर वाली हो, एंथनी गिडन्स हो. एंथनी गिडन्स की 4 किताबें हैं. चाहे वो एंड्रे बेतले हो, एम.एन. श्रीनिवास हो, एस.सी. दुबे हो, मैरियट हो, ए.आर. देसाई हो, योगेंद्र सिंह हो, कोई भी किताब आप बोलो, इग्नो BA, इग्नो MA, सबके सब नोट्स के अंदर क्रक्स में मिलेगी. आपको कोई किताब दूसरी पढ़नी ही नहीं है. थर्ड, PPTs. अब द क्लासेस के अंदर जो PPTs कई बार यूज होती है. इससे आगे हमारी मेंटरशिप. अगेन ये फीचर अगर कोई और इंस्टीट्यूशन में मिलता है तो आई एम रेडी टू लूज माई मनी एंड इवन माई पोजिशन इफ यू वांट दैट. पर्सनल मेंटरशिप, दिस इज नॉट अ प्रॉमिस मेड बाय स्टडी IQ, बट दिस इज नाउ एटलीस्ट अ पार्ट ऑफ आवर प्रोग्राम, जहां पे जितने स्टूडेंट्स हमारे बैच के होते हैं, मैंने सारे स्टूडेंट्स को डिवाइड किया है ऑन डिफरेंट पैटर्न्स. जो एग्जिस्टिंग स्टूडेंट्स का बैच है उनकी रात को 9, 9:30, 10 बजे हम सेशन लेते हैं 35-40 मिनट्स रेगुलर बेसिस पे. जैसे 2 या 2 से अटेम्प्ट ज्यादा दिए गए हैं, उनका एक अलग जूम सेशन होता है जिसका नाम मैंने रखा है दंगल, बिकॉज अब दंगल करने का टाइम है. खिलाड़ी, मेजर साहब, भाग मिल्खा भाग, दम लगा के, सनशाइन, और फर्स्ट अटेम्प्ट वालों का अलग ग्रुप है. कंप्लीट कोर्स जिसका हो गया उनको भी छोड़ता नहीं हूं मैं कि हो गया कोर्स और जाओ. उनकी भी जूम सेशंस होती है. और जो नए बच्चे ऐड हो रहे हैं उनका अलग से जूम सेशन होता है, बिकॉज ये शायद इनसे जेलअप नहीं कर पाए. इनका आंसर राइटिंग का कंसर्न होगा, इनका शायद कंटेंट का हो सकता है, इनका शायद डाउट का हो सकता है, तो इनका शायद आंसर राइटिंग का हो सकता है. सबको कैसे एक साथ एडजस्ट कर दूं? तो क्लास के बाहर भी पर्सनली मैं मेंटर करूंगा. आई विल टेक दीज पर्सनल जूम सेशंस, ऑल्दो it's not an established feature, but yet I am following this at least from past 3 months. This is called as mentorship. Next, our classes, पहले 15 मिनट आंसर राइटिंग होती है डेली. लास्ट 15 मिनट डाउट सेशंस होते हैं, और ये इंटरैक्ट करके डाउट सेशंस होते हैं. ऐसे नहीं कोई चैट में आएगा. यू वुड इंटरैक्ट विथ मी जस्ट लाइक दिस. जैसे मे बी यूट्यूब लाइव के अंदर तो आप चैट करते हो, यहां पे यू वुड बी स्पीकिंग, आई वुड बी लिसनिंग, अदर्स वुड बी लिसनिंग, एंड आई विल बी टैकलिंग योर डाउट. हर डाउट इसी इंटरैक्टिव मैनर में होगा जैसे ऑफलाइन में हो रहा है. बस ऑफलाइन में क्लियरली आप पर्सनली देखते हो, यहां पे बस एक वर्चुअल मीडियम है. एवरी फ्राइडे जो होता है
सिर्फ डाउट सेशन होती है पूरे वीक या पूरी क्लासेस। इससे पहले भी अगर 2 महीने पहले का भी कोई डाउट है, फ्राइडे को 2.5 घंटे सिर्फ डाउट लेता हूं मैं सारे बच्चों का। तो मंडे टू थर्सडे क्लासेस, फ्राइडे इज ओनली फॉर डाउट सेशंस। हर एक और फीचर जो इंपॉर्टेंट था आगे बताता हूं, टेस्ट सीरीज वाला, कंप्लीट इंटरैक्टिव पैटर्न्स होंगे, डेमोक्रेटिक क्लासेस। आप मुझे काउंटर कर सकते हो, आप अपना ओपिनियन बता सकते हो। एंड जो ये पहले 15 मिनट आंसर राइटिंग होता है, मैं क्वेश्चन देता हूं, आप अपना आंसर रीड आउट करते हो, मैं उसको इवैल्यूएट करता हूं ओरली, एंड देन आई गिव यू अ स्टैंडर्ड आंसर इन इंट्रो, बॉडी एंड कंक्लूजन फॉर्मेट। द नेक्स्ट वन, टेस्ट्स। टेस्ट सीरीज अलग से भी अपना हमारा एक कोर्स है, बट अगर आप बैच करते हो ज्वाइन, तो उसके अंदर आफ्टर एवरी 2 चैप्टर्स, सॉरी दिस इज बाय मिस्टेक, हर 2 चैप्टर के बाद में वी लार्जली हैव अ टेस्ट। आई एम सो सॉरी गाइस, दिस इज कॉल्ड AI। आफ्टर एवरी 2 चैप्टर्स वी हैव अ टेस्ट ऑफ दोस 2 चैप्टर्स देयर। नेक्स्ट, डिटेल्ड डिस्कशन होगा उस टेस्ट का इंट्रो, बॉडी और कंक्लूजन फॉर्मेट में, जिनके स्टैंडर्ड आंसर्स भी आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। क्वेश्चंस कहां से आएंगे, द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जो कोई ऑर्गेनाइजेशन में नहीं मिलेगा आपको, और मैं इतना कॉन्फिडेंट हूं हर एक फीचर के बारे में, बिकॉज वी हैव planned it to the point. After giving 4 attempts, 4 interviews, I realized कि शायद बहुत सारी चीजें मैंने कवर नहीं की थी। हैंड पिक्ड क्वेश्चन होते हैं सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन में। जो क्वेश्चंस आपको टेस्ट में आएंगे, JNU के सोशियोलॉजी के पेपर से, BA MA बोथ, DU, इग्नो और प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन, इन चारों का ही मिक्सचर होगा। हो सकता है 2 या 3 क्वेश्चन मैं करंट अफेयर्स से दे दूं या मेरी अपनी अंडरस्टैंडिंग से दे दूं, ताकि आप ये सारे क्वेश्चंस कवर कर लो, एंड दीज क्वेश्चंस आर गोइंग टू अपीयर इन योर एग्जामिनेशन देयर। अब अगर इन सारे फीचर्स से आपको लग रहा है कि दिस इज द कोर्स एंड आई बेट ऑन दिस, इससे बाहर सोशियोलॉजी अगर आप कर भी रहे हो और ये सारे फीचर हैं, तो आंख बंद करके ज्वाइन करो। एंड एज फार एज द इंट्रैक्शन इज कंसर्न्ड, स्टडी IQ इज द ओनली प्लेटफॉर्म जहां पे इतनी इंटरेक्टिव क्लासेस होती है दैट यू विल लिटरली नॉट फील दैट द क्लासेस आर ऑनलाइन, यू विल फील दैट यू आर इन गॉड डैम अ वर्चुअल क्लासरूम। 18 से बैच ज्वाइन हो रहा है, बिकॉज रिमेंबर गाइज, अगले 5 महीने शिद्दत से सोशियोलॉजी करनी है हमको, और अगर ये 5 महीने में कंप्लीट हो जाता है तो पीटी में आपका कोई प्रेशर नहीं रहेगा, एंड यू विल एबल टू क्रैक द प्रीलिम्स एज वेल, बिकॉज यू वुड हैव बीन फ्री फ्रॉम द स्ट्रेस ऑफ योर सोशियोलॉजी ऑप्शनल और ऑप्शनल एज सच। ज्वाइन द बैच फ्रॉम 18th। हर एक सब टॉपिक सिलेबस का कवर होगा। इवन इफ अ सिंगल टॉपिक इज लेफ्ट इन योर सिलेबस, आई वुड कंप्लीटली रिफंड योर फीस ऑन माई पर्सनल बिहाफ। एक सब टॉपिक भी नहीं छूटेगा। सो एनी ऑफ यू हु हैव ऑलरेडी डन योर कोचिंग, और आपको लग रहा है कि क्योंकि एक बार बैड एक्सपीरियंस हो जाता है कोचिंग से, तो लगता है नई कोचिंग नहीं करनी है। 20,000 के अंदर टेस्ट सीरीज मिलती है राजेंद्र नगर के अंदर। And if you really want to take your content, your concept, your application and your structure to next level, all those people who have even finished their coaching classes, in next 5 months, it's time to revise, because anyways you are going to appear in 2024. Join this batch and you will not feel that you are in a coaching institution. You will feel that you are getting the right content now and you are actually able to write those answers. So join the batch if you feel like. Thank you so much. Have a nice day. Study IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।